much time. I'll take only few minutes to speak. कुछ समय के लिए मैं बात करूंगा. A Combined Defense Ex-Servicemen Welfare Association, Army, Air Force and Navy का बनाया हुआ एक वेलफेयर एसोसिएशन आज हमारा बीच जो मुख्य अतिथि है श्री ए रेवंत रेड्डी गारू, प्रेसिडेंट of Telangana Pradesh Congress Committee, also a member of Parliament of Lok Sabha, New Delhi. Also, there are a lot of dignitaries upon the stage. I welcome you, sir. I all utterly thank from the military people that you are selected, Mr. P. Rajendran, as a chairperson for the Army and the Welfare Association. Thank you, sir. And also this time, we remember our Srimati Sonia Gandhi ji, also Rahul Gandhi ji, and all the party workers of Congress. I bless every Congress leaders and the party members to stand firm and lift the banner of Congress. I thank you, sir. I am very pleased to introduce Mr. Rajan to you. Rajendran was an ex-serviceman. He was a good sportsman and also he was a good leader. When there was a Telugu Desha, he was a councillor in the Kapra municipal, and also he was working leading the people into the very nice way, and in the locality, in the unity, in the ex-serviceman community, is working very hard. On behalf of this ex-serviceman soldiers, I request the high authority to please render even the MLA ticket for him to contest. The military people are there to support the Congress and the Congress banner. From this, I take leave, sir. Thank you very much. Rajendra garu. Now I request Ravi Charles, President Combined Defense Welfare Association, to honor our Honorable President with bouquet. Followed by Mr. R. Moses will honor with shawl. Make it fast, R. Moses. Sammy, come forward and honor our Honorable President Nadeem Javadji, All India Congress Committee Secretary, to honor with bouquet. May I request Mr. Dinakaran, ex-Joint Secretary, Telangana State Secretariat, to honor our Honorable Working President Sri Mahesh Kumar Gaudji, to honor with bouquet. Followed by shawl, Mr. P. Gunasekar, General Secretary, Combined Defense Welfare Association, Ex-Servicemen Welfare Association. Now I request Mr. Krishna Swami Ramesh to kindly come and honor our Honorable Working President, Vice President Madhu Ravi Garu, to honor with bouquet, followed by Mr. R. Krishnan to honor with shawl. Mr. R. Krishnan. Now I request here Ravi Kumar. Mr. Ravi Kumar to honor Srinath Reddy to bouquet and follow with shawl. Now followed by Mr. A. Gopal
इंस्टेड ऑफ आई एम स्पीकिंग इन तेलुगु, मैं भारत देश का फौजी के नाते मैं हिंदी में बात करना चाह रहा हूँ। पहले हमारा ये मंच पे बैठे इंचार्ज सेक्रेटरी नदीम जावेद जी और हमारा महेश कुमार गौड़ साहब, अपना मल्लू रवि साहब और रागिड लक्ष्मण रेड्डी गारू, हमारा एसीसीएल डिपार्टमेंट चेयरमैन और हमारा यंग लीडर वेंकट और सभी मंच पे बैठे, हमारा सबसे बड़ा ये मंच में बैठे सबसे बड़ा हमारा बॉस हमारा रेवंत रेड्डी साहब, मैं फौजी के नाते, आर्मी के नाते दो बात कहना चाहता हूँ। आर्मी, फौजी, जवान मतलब एक ही चीज़ है, सच, झूठ नहीं बोलेगा। सैलरी के अलावा कोई साइड बिजनेस नहीं होगा, कोई ओवर टाइम नहीं होगा, कोई बेंच के नीचे से हाथ दिखा के लेने का आदत नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड आर्मी सोल्जर। और मैं आर्मी सोल्जर के नाते हमारा रेवंत रेड्डी साहब का जो क्वालिटी देख के एक दो बात जरूर कहना चाहूँगा। मैं कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छा टीम है, कोई डाउट नहीं, इट्स ए वेरी गुड टीम, कांग्रेस टीम। कोई लीडर को, कोई प्लेयर को कोई भी कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कह सकता, उतना कांग्रेस पार्टी अच्छा एक कांग्रेस पार्टी है। जरूरत यह था कि कांग्रेस पार्टी में टारगेट मारने के लिए एक कैंडिडेट जरूरत था। भारत देश में हमारा कांग्रेस पार्टी चुन के नहीं लेकर आया, लेकिन हमारा रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस पार्टी को चुन के मैं टारगेट मारता हूं करके आया। ये है आर्मी सोल्जर का एक क्वालिटी है। मैं जान देता हूं, मैं सब मेरा टाइम देता हूं, एवरीथिंग आई विल सैक्रिफाइस फॉर कांग्रेस पार्टी टू अपलिफ्ट द कांग्रेस पार्टी। यह है हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट साहब का। और बोलने की कोई जरूरत नहीं, आज किधर से कहां तक कांग्रेस पार्टी आया सब जानते हैं। पर्टिकुलरली जितना भी एक्स सर्विसमैन है, एक एक्स सर्विसमैन के पीछे 100 जवान्स है। ये नहीं है पूरा, ये उधर आने से ये पूरा हाल भर जाएगा। इसीलिए खास करके इंपॉर्टेंट एक्स सर्विसमैन को हम सेलेक्ट करके लेकर आए इधर, ताकि आने वाला दिन में हमारा रेवंत रेड्डी साहब के पीछे हम खड़ा होके हम कैसा काम करेंगे, कैसा हमारा कांग्रेस पार्टी का आगे बढ़ाएंगे, कैसा जवानों के लिए इंदिरा जी जो सैक्रिफाइस किया उसको बराबर करने के लिए हमारा स्टेट में रेवंत रेड्डी साहब को बहुत जरूरत था। इसलिए हर जवान रेवंत रेड्डी साहब को याद रखते हुए उनका जो दम जो है ना, आर्मी सोल्जर, मैं अभी से प्राउड से बोलूंगा, आर्मी सोल्जर है हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट, इज एन बिग आर्मी सोल्जर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द टीम। इनका जो सैक्रिफाइस, इनका जो दिन रात मेहनत करने का, इन लोग छोटे बच्चे से लेकर गरीबों से गरीबों के घर में जाके उनका दुख जानने का वही नहीं। आज राजेंद्र कुछ भी नहीं, राजेंद्र को चुन के, एक जवान को चुन के, 71 वार मेडलिस्ट जवान को चुन के आज पीसीसी प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन किया हमारा रेवंत रेड्डी साहब। और मैं जान दूंगा, पार्टी के लिए जान दूंगा, उनका हर एक ऑर्डर मान के उनका मुताबिक चलूंगा, उन लोगों के ऑर्डर के मुताबिक चलूंगा, कहीं भी ले डाउन नहीं करूंगा पार्टी को। दिस इज माई प्रॉमिस। थैंक यू सर। పెద్దలు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ చైర్మన్గా మిత్రుడు రాజేంద్రన్ బాధ్యత తీసుకుంటున్న సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా ఏఐసిసి సెక్రటరీ నదీం జావేద్ గారు, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, మల్లు రవి గారు, వినోద్ రెడ్డి గారు, ఆర్ఎల్ఆర్ గారు,
అనిల్ కుమార్ యాదవ్, ప్రీతం, అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలామంది సర్వీస్లో పనిచేసి రిటైర్ అయిన మిత్రులందరూ ఇక్కడికి వచ్చిండ్రు. మీ అందరి తరఫున రాజేంద్రన్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. వారికి హోదా రికమెండేషన్తో రాలేదు, ఆయన ఎలిజిబిలిటీతో వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ నాట్ రికమెండెడ్ హిస్ క్యాండిడేచర్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ చైర్మన్. भरोसा है राजेंद्रन एक कुर्सी का ईमानदारी और एक कुर्सी का जो गौरव बचाना है वो बचाएगा. इनके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन के जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको पता है, क्योंकि स्टेइंग एट कंटोनमेंट एरिया मोर और लेस एवरी डे यूज टू मीट आर्मी पीपल और एक्स सर्विसमैन. तो यहाँ पर एक पॉलिसी नहीं है तेलंगाना प्रदेश में. केंद्र सरकार के कुछ पॉलिसीज है, अगर रिटायर होने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलना है या नहीं मिलना है. उसमें से आपको जो हेल्थ का मुद्दा है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू पीपल आर नॉट गेटिंग एनी फंड्स फॉर योर हेल्थ ट्रीटमेंट. दैट इज़ वाई ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आर रिफ्यूजिंग टू गिव ट्रीटमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन. Being a defense committee member, I know what is happening. Where the state government is required, the state government is not reacting in appropriate this thing. इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, राजेंद्रन मेरा अच्छा दोस्त है, कोई मेरा साथ वो मेरे साथ में काम करने वाले हैं. इनके साथ साथ ये तेलंगाना में जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, पहले आप उनको जोड़ने का काम करो. राहुल जी जैसा ही हिंदुस्तान को जोड़ने का काम लिए, एक्स सर्विसमैन कितने हैं पहले उन लोगों को जोड़ो. जोड़ने के बाद उनका तकलीफ क्या है, आगे उनका सुझाव क्या है, आगे चलाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए उनके साथ साथ जान लगा के कुर्बानी दिए. सो परिवारों को बचाने के लिए उन लोगों को जो सपोर्ट करना है, हेल्थ एंड एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज रिटायर होने के बाद आप लोगों को कहाँ कहाँ प्रदेश सरकार में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सब सारे के लिए एक पॉलिसी का ज़रूरी है. आप लोगों के तरफ से आप लोग हमेशा देश को बचाने के लिए, देश को रक्षा करने के लिए आप लोग हमेशा कोशिश करते हो, हमें पता है. मगर आप लोगों को बचाने का, आप लोगों को रक्षा करने का काम कांग्रेस पार्टी लेंगे. वो पीसीसी अध्यक्ष तेलंगाना से वो वजन मैं उठाऊंगा. खाली आपके तरफ से मेरा एक ही गुजारिश है, क्या क्या किए तो हम लोग आर्मी परिवारों के लिए काम कर सकते, उसके सुझाव का जरूरी है. वही मैं मेरा मैनिफेस्टो में रखूंगा. राहुल जी से और सोनिया गांधी जी से एक्सेप्टेंस लूँगा. कांग्रेस पार्टी एक पॉलिसी लेकर एक्स सर्विसमैन के लिए हमारे आने वाले चुनाव में हमारे पॉलिसी में, कांग्रेस पार्टी पॉलिसी में हम लोग जोड़ेंगे. उसके लिए आप लोग एक सब कमेटी बना लेके, राजेंद्रन को मेरा सुझाव ये की है, हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस पॉलिसीज एंड टू एड्रेस योर प्रॉब्लम्स, उन लोगों की एक सब कमेटी डालो, सबसे चर्चा करो, सबका जो सुझाव है वो पूरा एक क्रोनोलॉजिकल एक डॉक्यूमेंट बनाओ. वही हम लोग, जहाँ तक मुझे पता है हेल्थ इश्यूज़ का प्रॉब्लम है. कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप लोगों को जो ट्रीटमेंट मिलना है, हॉस्पिटल्स के पेमेंट रिलीज़ नहीं हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से. बहुत सारे एक्स सर्विसमैन को एक प्रॉब्लम हो रहा है. दूसरा, रिटायर होने के बाद प्रदेश सरकार में आपको जो सिस्टम में जो नौकरी मिलना है वो भी तकलीफ है. तीसरा, बॉर्डर्स पे जो शहीद हो रहा है जवान, उनके परिवारों को साल भर कुछ प्रदेश सरकार से कोई भी अगर मदद देना है, उनके परिवार में जॉब देना है या बेनिफिट कुछ मिलना है, वो कभी कभी मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ 5 साल 10 साल ऐसा कुछ टाइम लग रहा है. मेरा खुद का गांव का याद है, जम्मू कश्मीर में जवान ये आतंकवादियों के गोली से मार गए. उनके परिवार को उनके घर पर आके, वो हमारे गांव पर आके सब सारे सरकार ने वादा किया था उनके बीवी को नौकरी देने का और लैंड देने का, घर के लिए पट्टा देने के, सब सारे उनके बच्चों को पढ़ने के
मगर 8 साल हो गया अभी तक तो पूरी नहीं हुआ। तो इसको एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड प्रोग्राम में कंप्लीट करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आना है। मतलब वंस द सोल्जर अगर कुछ हो गए, शहीद हो गए, उनको 30 डेज में जो भी बेनिफिट्स मिलना है प्रदेश सरकार या सेंट्रल सरकार के, कुछ पॉलिसी बनाना है। विद इन द 30 डेज दे हैव टू गेट ऑल देयर वट एवर बेनिफिट्स। तो ऐसे कुछ हम लोग पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं। आपके तरफ से आपके मदद हम लोग मांग रहे हैं। आप लोग ये मदद दो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने में मदद दो। और राहुल जी, भारत जोड़ो यात्रा में एक सर्विसमैन से आपको एक दिन मैं मौका दूंगा। राहुल जी के साथ साथ आपके मेडल्स, आपके ड्रेस, अक्टूबर 24 को राहुल जी तेलंगाना में कदम रखने वाले हैं। मतलब अक्टूबर आखिरी में वो आएगा, नवंबर 10 तारीख तक यहाँ पर रहेगा। मैं एक्स आर्मी जो भी सरहद पे लड़े, आर्मी में काम किए, आप लोग पूरा आपके जो सर्विस में आपका जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड के साथ साथ आप लोगों को राहुल जी के साथ चलने के लिए एक 2-4 घंटे आप लोगों को मैं वहाँ पर जगह दूंगा। मैं राहुल जी को मेरे तरफ से ओजन में हमारे नदीम भाई को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई जिस दिन राहुल जी हमारे तेलंगाना में पदयात्रा के भारत जोड़ो में आएगा, ये आर्मी एक्स सर्विसमैन सब लोग राहुल जी के साथ में जोड़ने के लिए, राहुल जी के साथ कदम कदम मिलाने के लिए 1-2 घंटा इन लोगों को मौका दिलवाना है, क्योंकि उनके मेडल से बांग्लादेश वार में पार्टिसिपेट किए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ या चीना के खिलाफ लड़े जो लोग हैं, अगर शहीद हुए उनके कुछ परिवार भी है। आर्मी के लिए एक आधा दिन तो इन लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए राहुल जी को, क्योंकि राहुल जी का बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। वाई बिकॉज राहुल जी और माई सेल्फ और इन डिफेंस कमेटी मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी के तरफ से 2 ही लोग डिफेंस कमेटी में मेंबर, स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर्स है। एक राहुल जी, दूसरा मैं हूँ लोकसभा से। तो राहुल जी का ये सब्जेक्ट बहुत अहम मुद्दा है, इसीलिए मैं आप लोगों को जो पदयात्रा में राहुल जी से मिलाना चाह रहा हूँ। अब कौन कौन मिलता है उसका एक लिस्ट बनाओ, उनका पोजीशन का लिस्ट बनाओ। पहले उसका क्लियरेंस राहुल जी से और सिक्योरिटी से हम लोग ले लेंगे। ये आप लोगों को राहुल जी से मिला है तो आप जो भी आपका प्रॉब्लम्स है और इश्यूज है, सजेशंस है, क्योंकि अग्निपथ लेकर आए अभी, अग्निपथ के वजह से अभी जवान को क्या मिलने वाले है, देश को क्या नुकसान होने वाला है, जवान को क्या नुकसान होने वाला है, सर्विस में काम करने के बाद उनको कुछ पेंशन नहीं मिले तो उनका टेंशन कितना है, ये सब सारे आप लोग राहुल जी की बोल सकते। तो उसको हटाने के लिए हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, आने वाले दिनों में केंद्र और प्रदेश सरकार में हम बनाने के बाद आप लोगों को मदद देने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। इसीलिए आपके मदद हमेशा हमारे साथ में रहना, हमारा जो भी सोच है आपके तरफ रहेगा। ये मीटिंग में और राजेंद्रन का जो स्वेरिंग इन सेरेमनी में जो पार्टिसिपेट किया, आप लोगों को सबको धन्यवाद देते हुए मैं छुट्टी लेता हूँ। धन्यवाद मित्र। हेलो, अभी आप सब खड़े हो जाएंगे, नेशनल एंथम होगा प्लीज। I would request everyone to please stand attention. There will be a national anthem soon after the felicitation. Yeah. National anthem. Please. Group attention. जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जल सितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है, जय 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 जय। 3 cheers to Ravindra Reddy Garu ji. Hip hip, hip hip, hip hip.
धन्यवाद सर।